Dear students, this is my 7th lecture on the mechanical properties of fluids. In this lecture, the main points of my lecture are excess pressure across the free surface of the liquid. There are three types of free surfaces. Therefore, first, plane liquid surface, convex liquid surface, concave liquid surface. And the last point is the explanation of formation of a drop and bubbles. The first point is the excess pressure across the free surface of the liquid. Excess pressure across the free surface of the liquid. There are three types of free surfaces of the liquid. One is the plane surface. One is the plane surface, convex surface and concave surface. There are three types of surfaces of the liquid, that is a free surface of the liquid. लिक्विड इक्विलिब्रियम पोजीशन में लिक्विड के थ्री टाइप्स के फ्री सरफेसेस होते हैं. एक प्लेन सरफेस, जब लिक्विड का सरफेस बिल्कुल प्लेन है. दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, जब लिक्विड का सरफेस कॉन्वेक्स है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्क्यूरी. और कॉनकेव सरफेस. तो यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ये रिलेशन देखेंगे कि फ्री सरफेस, दिस इज ए लिक्विड, दिस इज ए लिक्विड. तो इस लिक्विड का फ्री सरफेस के ऊपर और फ्री सरफेस के नीचे अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होगा? ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर बी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक वैसे ही अगर ये लिक्विड सरफेस है, दिस इज ए फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस इज ए फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड फ्रॉम अपसाइड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज ए कॉन्वेक्स. ऊपर से अगर देखते हैं तो ये कॉन्वेक्स नज़र आता है, और नीचे से अगर सरफेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कॉनकेव आता है. तो इस कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर, सपोज दैट पॉइंट इज ए, और उसके नीचे किसी भी पॉइंट पर, सपोज दैट इनसाइड, मतलब कॉनकेव सरफेस के नीचे, इस कॉनकेव सरफेस पे और ये कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर, मतलब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर पॉइंट ए है और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के नीचे पॉइंट बी है. तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रेशर ए पे ज़्यादा होगा या फिर बी पे ज़्यादा होगा. ऐसे ही ये लिक्विड है जो कॉनकेव सरफेस बनाता है. द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉनकेव. तो कॉनकेव सरफेस पर कोई पॉइंट ए लेंगे और कोई पॉइंट नीचे इनसाइड ऑफ द लिक्विड बी लेंगे. तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा है या फिर पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा है. नाउ कंसिडर ए प्लेन लिक्विड सरफेस. तो यहाँ पे बीकर में कोई ऐसा लिक्विड लिए हैं जिसका फ्री सरफेस बिल्कुल प्लेन है. दिस इज ए प्लेन सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज ए लिक्विड इनसाइड दिस container. Now you know that the force of surface tension is acting at an interface between two media. So consider a point A. This is a point A and this is a point B. Point A is just above the plane surface and point B is just below the plane surface. You know that the force due to surface tension is acting tangentially on an imaginary line drawn on the free surface of liquid. So here this is air, this is air and this is a liquid. So therefore the force is acting at the interface between the media of these two materials. The force due to surface tension is acting between liquid air interface. So therefore here the force due to surface tension is, suppose that Ft. What is Ft? Ft is the force due to surface tension acting
along the interface of air and liquid, and the same force is acting here along this interface, and this force is also Ft. This is due to the surface tension. So it is very clear from this diagram, both the forces Ft, Ft, and both the forces are acting exactly in the opposite directions. Therefore, the resultant force here will be 0. So now just the molecule which is just at the surface of the liquid, just at the free surface of the liquid, experiences 0 force. So therefore, the pressure above is equal to pressure below. So therefore, you can say pressure at point A is the same at the pressure as the pressure at point B. Next point is the convex liquid surface. Convex liquid surface. Now in case if the free surface of the liquid is like a convex, this type of surface, this is a free surface of the liquid. Now again here consider 2 points A and B. Point A just above the convex surface, means above the free surface of the liquid, and point B just below the free surface of the liquid. Now again here there are interface of two media, that is a liquid and air. This is a air and this is a liquid. So force due to surface tension is acting tangentially on the free surface of the liquid and perpendicular on an imaginary line drawn on the free surface of the liquid. Therefore, one force is acting like this. One force is acting like this. This force is the force due to surface tension, and which is acting on the molecule which is located just on the free surface of the liquid. So therefore, you can say the resultant force of these two forces is acting vertically downward. Resultant force is acting vertically downward, and this resultant force is due to the surface tension, that is Ft. And you know that just above the convex surface, here the point is located just above the convex surface is in the atmosphere, and there is a atmospheric force acting in downward direction. This is atmospheric force, and this force is Fa, and this atmospheric force exerted the atmospheric pressure at point A, and this force due to the surface tension exerts a pressure at this surface, that is experienced by the molecule B. So it is very clear, the pressure above the free surface of the liquid is due to this force, that is the force due to atmosphere, and this force exerted the atmospheric pressure. मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा? इस फोर्स की वजह से होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। अब दूसरा प्रेशर बी पे कैसे होगा? ये सरफेस टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है, इसलिए कि सरफेस टेंशन फोर्स टेंजेंशियली काम करता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर। तो इन दोनों सरफेस टेंशन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वह होगा Ft। इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर होगा वह प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस तरह से बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वह इन दोनों प्रेशर का सम होगा, इसलिए कि दोनों प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी greater than pressure at point A. Next is the point C is the concave liquid surface. If the free surface of the liquid is concave, किसी लिक्विड का फ्री सरफेस कॉन्केव है, जस्ट लाइक दिस,
concave. This is a concave surface, and this is a liquid. This is a liquid. Now consider here 2 points A and B. Point A just above the free surface of the liquid, and point B just below the free surface of the liquid. Again here, the tangential force, that is the force due to surface tension, is acting like this. और यहाँ से भी वैसा ही फोर्स काम करेगा. मतलब कि जहाँ पे लिक्विड और एयर का इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अलोंग टेंजेंशियली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन काम करेगा. तो एक फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो गया ये, और दूसरा हो गया ये. अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट अगर हम ड्रा करेंगे तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन. एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स इज Ft. दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन. और ऑलरेडी इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक फोर्स काम करेगा ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एंड दैट फोर्स ये हो गया Ft, एंड दैट फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज Fa. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बी पॉइंट पर फोर्स ए पॉइंट के फोर्स से ज़्यादा होगा या कम होगा. तो ए पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो Fa होगा. बी पॉइंट पर जो फोर्स होगा, Ft फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और Fa फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो देयरफॉर दिस फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट बी विल बी लेस देन दिस फोर्स. यहाँ पे जो फोर्स होगा वह इस फोर्स से कम होगा, और यह फोर्स पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. यहाँ पे जो प्रेशर होगा वह इस प्रेशर से कम होगा, इसलिए कि यहाँ का फोर्स इस फोर्स से कम है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा. तो देयरफॉर यू कैन से, देयरफॉर द प्रेशर एट बी is less than pressure at A. यहाँ पे A पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा और B पॉइंट पे प्रेशर कम होगा. मतलब अगर लिक्विड का सरफेस कॉन्केव है तो कॉन्केव सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो लिक्विड के इनसाइड के प्रेशर से ज़्यादा होगा. Here we discuss the formation of explanation of the formation of drops and bubbles. ड्रॉप अगर फॉर्म होता है तो हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर क्या होगा, और इन केस ऑफ बबल है तो उस सिचुएशन में. नाउ दिस इज ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड. ये लिक्विड ड्रॉप है. Now radius of the drop of the liquid is r. This is the radius of a drop of the liquid, and pressure inside the liquid drop is Pi. Means Pi is the pressure inside the drop of the liquid, and on the outside of the drop of the liquid is pressure Po. Inside the pressure Pi is greater than the outside of the pressure Po. Due to this excess pressure, so what is the excess pressure here? Excess pressure here is Pi minus Po, because Pi is greater than that of the Po. So this, due to this excess pressure, the liquid expands. इसका वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा? इनसाइड प्रेशर ऑफ द लिक्विड ज़्यादा है और आउटसाइड प्रेशर ऑफ द लिक्विड कम है, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा. और कितना एक्सपेंड होगा? वेरी स्मॉल एक्सपेंशन होगा, एंड दैट विल बी डेल्टा आर. मीन्स द रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप विल बी इंक्रीजेज बाय डेल्टा आर. तो इनिशियल रेडियस ऑफ द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज आर,
and final radius of the drop of the liquid will be r plus delta r. और यह इंक्रीज क्यों हुआ? इस एक्सेस प्रेशर की वजह से हुआ. और एक्सेस प्रेशर कहाँ से आया? इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए एक्सेस प्रेशर होगा पी आई माइनस पी ओ. और इस एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वह इंक्रीज होगा डेल्टा आर अमाउंट से. डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इनिशियल रेडियस विल बी आर and final radius of the drop will be r plus delta r. Let initial surface area मतलब यह जो लिक्विड ड्रॉप जिसका इनिशियल रेडियस स्मॉल r है उसका सरफेस एरिया, इनिशियल सरफेस एरिया होगा A1 एंड A1 इज इक्वल टू 4 पाई r square because this is a spherical and surface area of sphere is 4 pi r square. And final surface area due to excess of pressure, जब excess pressure inside से काम करेगा तो यह लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा. तो फाइनल सरफेस एरिया कितना होगा? फाइनल सरफेस एरिया विल बी A2 एंड A2 इज इक्वल टू 4 पाई. अब यहाँ पे R के जगह पे हम फाइनल रेडियस लेंगे. इनिशियल रेडियस था R और फाइनल रेडियस हो जाएगा, फाइनल रेडियस विल बी R प्लस डेल्टा R. डेल्टा R इंक्रीज इन द रेडियस. तो देयरफॉर द फाइनल सरफेस एरिया A2 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर. तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई और इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस 2r into delta r plus delta r square. Now therefore you can write after expansion 4 pi r square plus 4 into 2 8 pi r into delta r plus 4 pi into delta r square. तो फाइनल सरफेस एरिया A2 कितना हो गया? A2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r इंटू डेल्टा r प्लस 4 पाई इंटू डेल्टा r स्क्वायर. बट यू नो दैट दिस इंक्रीज इन द रेडियस डेल्टा r इज वेरी स्मॉल. डेल्टा r इज वेरी स्मॉल. तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ डेल्टा r विल बी अगेन ए वेरी लेस, वेरी स्मॉल. ये उससे भी स्मॉल हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे. फॉर एग्जांपल 0.1 कोई क्वांटिटी है एंड दिस इज ए स्मॉल क्वांटिटी. जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 0.01 और 0.01 स्मॉल क्वांटिटी है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.0001, तो ये उससे भी स्मॉल हो जाएगा. तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर उससे भी स्मॉल होता है, इसलिए हम इस क्वांटिटी को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं. किसको नेग्लेक्ट करेंगे? डेल्टा आर स्क्वायर से रिलेटेड क्वांटिटी को. तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर. दिस इज द फाइनल सरफेस एरिया A2. This is the initial surface area of this drop. This is the final surface area due to excess of pressure. So therefore, what is the increase in surface area of the drop? Increase in surface area of the drop is dA, and dA is equal to final surface area. Final surface area is A2 minus initial surface area, that is A1. तो therefore अब A2 में से A1 को जब हम माइनस करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा? दिस विल बी इक्वल टू
8 pi r into delta r. Say this is equation number 1. Now here the force is acting due to because pressure, initial pressure is greater than the outer pressure. तो इनिशियल प्रेशर आउटर प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फोर्स काम करेगा और उस फोर्स की वजह से रेडियस इंक्रीज होगा. तो देयरफॉर द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय dA is stored as a excess surface energy, and that work done dW is equal to, you know that, TdA. Remember this definition: the surface tension work done per unit surface area is called surface tension. This is another definition. Or surface energy per unit surface area is called surface tension. तो उस फार्मूले का हमने यूज किया dW इज इक्वल टू TdA. यहाँ पे dA क्या है? dA इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू T इंटू dA, दैट इज 8 pi r into delta r. Now this will be second equation. This work done is also equal to product of the force F which causes the increase in the area of the drop. यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स की वजह से एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और रेडियस कितना इंक्रीज हो रहा है? डेल्टा आर. तो देयरफॉर यू कैन अगेन you can write the work done according to that concept. Work done is equal to force into displacement. Here the force acting due to initial pressure Pi is F. So therefore F into how much displacement takes place here, due to that force displacement will be delta R. So therefore F into delta R. This is equation number 3. Thus excess force, you can write excess force is equal to excess pressure into surface area, increased surface area. surface area. ये कहाँ से एक्सप्रेशन लिखा हमने? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो देयरफॉर व्हाट इज द एक्सेस फोर्स? एक्सेस फोर्स इज F, and F is equal to excess pressure. Inside the pressure is Pi, outside the pressure is PO, and inside pressure Pi is greater than outside pressure PO. Therefore excess pressure will be Pi minus PO. Excess pressure is equal to Pi minus PO. and surface area, इस स्फीयर का surface area है 4 pi r square. तो therefore into 4 pi r square. तो this will be equation number 4. Equation number 4. अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए. पहला है dA इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 8 पाई r इंटू डेल्टा आर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. दूसरा इक्वेशन है dW इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई r इंटू डेल्टा आर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. और एक इक्वेशन मिल गया dW इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर. ये थर्ड इक्वेशन हो गया. और फोर्थ इक्वेशन है F इज इक्वल टू Pi माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर. अब इन इक्वेशंस का यूज करेंगे. नाउ यूजिंग इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3. इक्वेशन 2 एंड 3, यह है इक्वेशन 2 और यह है इक्वेशन 3. इन दोनों इक्वेशंस का यूज हम करेंगे. इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है dW
तो दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड सेम होगा। तो देयरफॉर यू कैन राइट t इंटू 8 पाई r इंटू डेल्टा आर, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 3 f into delta r, and you know that the value of f is equal to pi minus po into 4 pi r square. तो इक्वेशन you can write t into 8 pi r into delta r is equal to f, और f की वैल्यू है pi minus po इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे है डेल्टा आर, तो देयरफॉर इंटू डेल्टा आर। देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन राइट पी आई माइनस पी ओ। पी आई माइनस पी ओ को हम लेफ्ट साइड में लेंगे, तो इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4 से कट करेंगे 2 टाइम्स, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2t upon r, 2t upon r. Therefore you can write excess pressure pi minus po is equal to 2t upon r. What is t? T is the surface tension of the liquid, r is the initial radius of the drop of the liquid. This equation gives the excess of pressure inside a drop of the liquid, and this is called Laplace's law. This is called Laplace's law of spherical membrane. Now in case of soap bubble, what is the excess of pressure in case of soap bubble? In case of soap bubble, what is the difference between a liquid drop and soap bubble? लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल में डिफरेंस क्या है? लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होता है, सोप बबल भी स्फेरिकल होता है, लेकिन लिक्विड ड्रॉप में सिर्फ एक ही सरफेस होता है, आउटर सरफेस, और सोप बबल यह एक मेम्ब्रेन से बना होता है। इनसाइड का जो स्पेस है वो कम्प्लीटली खाली होता है, एयर होता है, इसलिए सोप बबल में 2 सरफेसेस होंगे, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, और मेम्ब्रेन इतना थिन होता है कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों नियरली सेम होते हैं। तो देयरफॉर हियर हमने डिराइव किया था इंक्रीज इन सरफेस एरिया लिक्विड ड्रॉप का, वह था 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। इन केस ऑफ सोप बबल इंक्रीज इन सरफेस एरिया इसके जस्ट डबल होगा। क्यों डबल होगा? इसलिए कि सोप बबल में 2 सरफेसेस होते हैं, एक होता है इनर सरफेस और दूसरा होता है आउटर सरफेस। सिर्फ यही डिफरेंस है लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल में। तो नाउ लेट अस वी यूज द प्रीवियस एक्सप्रेशन विच आर यूज्ड टू फाइंड द एक्सेस ऑफ प्रेशर, एंड दैट इज dw is equal to excess pressure Pi minus Po into 4 pi r square into delta r is equal to T into dA.
T into dA. What is dA? dA is the dA T into dA. इस टर्म को हमने पहले लिख लिया, इस टर्म को पहले लिख लिया dW के लिए. तो therefore this is equal to T into dA. T is the surface tension and dE is the increase in surface area. तो यहाँ पे increase in surface area होगा 2 into 8 pi r into delta r. 2 into 8 16. तो ये हो जाएगा 16 pi r into delta r. Therefore, the excess of pressure Pi minus Po is equal to Pi minus Po. ये टर्म राइट हैंड साइड में चला जाएगा. तो therefore T into 16 pi r into delta r divided by 4 pi r square into delta r. delta r से delta r कैंसिल होगा, r से एक r कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स. तो therefore this will be equal to 4t upon r. और in case of liquid drop एक्सप्रेशन में हमें मिला था 2t upon r और यहाँ पे मिला 4t upon r. Now this is the next equation number 6. And this gives the excess pressure in case of soap bubble. Now this is a example, that is a numerical problem. What should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside is 80 Newton per meter square and surface tension of the water is given 7.27 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर दिया गया है. एक्सेस प्रेशर मीन्स Pi माइनस Po. ये एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है और सरफेस टेंशन दिया हुआ है वाटर का. तो गिवन क्वांटिटी सबसे पहले हम लिखेंगे. गिवन क्वांटिटी इज Pi माइनस Po एक्सेस प्रेशर. दिस इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और सरफेस टेंशन दिया हुआ है T इज इक्वल टू 7.27 इंटू 10 टू द पावर minus 2 Newton per meter. So therefore you know that in case of liquid drop, the formula is Pi minus Po means excess pressure is equal to 2T upon R. 2T upon R. T is the surface tension, R is the initial radius of the drop of the liquid. So let us we check the system of unit. Excess pressure given in SI unit and the surface tension is also in SI unit. So therefore there is no need of conversion of units. Directly you can substitute all the given quantities in this formula. Therefore from this formula R is equal to, R को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे. तो R हो जाएगा 2T अपॉन Pi माइनस Po. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज इक्वल टू 2 और T कितना है? T इज इक्वल टू 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन Pi माइनस Po. Pi माइनस Po इज इक्वल टू 80. तो देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will get the answer. This is equal to 1.8 into मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और यूनिट क्या होगा रेडियस का? मीटर. क्वेश्चन में डायमीटर पूछा गया है. देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू, यू नो दैट 2 टाइम्स द रेडियस एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 into 1.8 into 10 to the power
-3 मीटर, और 10 टू द पावर -3 मीटर मतलब हो गया 1.8 मिलीमीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1.8, दिस इज इक्वल टू 3.6 मिलीमीटर। और मीटर में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। मीटर में आंसर होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो नाउ next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.